everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to do sociology mega mock. It is full length, that means 75 questions, and I have already told this on my telegram that we are going to at least do 5 full length mock before CUET exam so that you guys have some idea of solving MCQs. So this is especially for CUET aspirants, and if you are preparing for NET also, this mock will be helpful. I am your educator Bhairavi Bharadwaj. Please don't forget to join this telegram because all the free material and all the PDFs you will find on this telegram only. So let us start and see what kind of questions are in today's mock. And don't forget to tell me your score in the end in the comment section. Okay. So in case you have any doubt in any question, please let me know in the comment section so that I can give the explanation of that question on my telegram channel. Okay, because I want कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, so सारे questions में explanation नहीं होगा, but जो questions tough हैं उनमें definitely there will be explanation. Okay, so 5 seconds का time है, जैसे कि आपको पता है rules क्या है, पहले mocks में अगर आपने देख रखा होगा कि आपको मुझे लास्ट में बताना है out of 75 आपके कितने questions सही हुए, और अगर आप अभी लाइव नहीं देख पा रहे हैं इस मॉक को तो आप बाद में जब देखिएगा तो एक कॉपी और पेन लेके तब उसे बैठिएगा और टिक करिएगा जो भी आपके सही हो एंड उस हिसाब से काउंट करिएगा. ओके, और अभी अगर आप लाइव हैं तो आप कमेंट में आंसर लिख सकते हैं. In this method, the observer himself participates in the activities of the group which he is studying. Participant observation, non-participant controlled या फिर uncontrolled. Very easy keyword based question. The correct answer is participant observation. Why? Because the keyword is already mentioned in the question. Okay. Question number 2. When the process of observation occurs under guided condition, it is called. तो जब observation होता है guided condition में तो उसे क्या कहते हैं? Participant observation, detailed observation, uncontrolled observation या फिर controlled observation. Guided conditions. The correct answer is D, that is controlled observation. Question number 3. When observation takes place in natural surrounding and activities are performed in their used course without any influence or guidance from any external force, इसे क्या कहेंगे? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल्ड या फिर कंट्रोल्ड. तो 2 बार कंट्रोल्ड हो गया यहाँ पर. द करेक्ट आंसर इज अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ केस स्टडी? केस स्टडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? फेडरिक लेप्ले, पीवी यंग, सीएच कूले या फिर विलियम गुरे? The correct answer is Frederick Lepley. Okay. Question number 5. Who defined case study as a comprehensive study of a social unit, be it a person, a group of person, a institution or an community? An institution होगा यहाँ पर. पीवी यंग, सीएच कूली, लेप्ले या फिर दुर्खाइम? The correct answer is PV Young. So एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, CUET का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन बेस्ड या फिर इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे. ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. और इस पूरे मॉक में जो भी आपको नई चीजें पता चल रही हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट बिफोर गोइंग टू योर एग्जाम. आई विल सेंड द PDF एंड उसको आप रिवाइज करिएगा. ठीक है. Question number 6. It is another course for case study that reveals the respondent. Okay, that होगा ये. That reveals the respondent's life with the significance of social movements. Personal documents, life history, both, none. सीधी definition है ये. The correct answer is life history. Question number 7.
Sociology is the science of social phenomena subject to natural and invariable laws, the discovery of which is object of investigation. ये सोशोलॉजी की एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है. ये हमें किसने दी है? ऑगस्ट कोंट, वेबर, जिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड. The correct answer is August Comte. It is the study of folk or common sense methods employed by people to make sense of everyday activities by constructing and maintaining social reality. It means that common sense is so important that it helps in understanding the methods of constructing reality. फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेट्रोलॉजी, एथनोलॉजी या फिर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? वेरी इजी. अगर आपको पता है एवरीडे एक्टिविटीज किसका कीवर्ड है, आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. द करेक्ट आंसर इज एथनोमेट्रोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 9. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज यूनिक, giving importance to individuals as architects of society. This theory was propounded by 3 eminent philosophers. तो social contract theory जो है वो हमें 3 लोगों ने दी है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड तीसरे कौन है? ऑगस्ट कोंट, मार्क्स, दुर्खाइम या फिर रोस्सेओ. The correct answer is D. Question number 10. This theory states that society is never man-made. ये थ्योरी हमें बताती है कि सोसाइटी कभी भी मैन मेड नहीं होता है. इट इज अ नेचुरल क्रिएशन. ये एक तरह का नेचुरल क्रिएशन है, नेचर ने बनाया है. एंड हैज स्टार्टेड थ्रू प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे. ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी. कौन सी थ्योरी में हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी मैन मेड नहीं है? वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 11. हु डिफाइंड community is any circle of people who live together and belong together in such a way that they do not share this or that particular interest only but a whole set of interest. तो ये कम्युनिटी का मीनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए. और ये किसने बोला है? कार्ल मैनहाइम, डूमो, जिन्सबर्ग, के डेविस. द करेक्ट आंसर इज कार्ल मैनहाइम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. Which are the integral elements of community sentiments? इसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में इंपॉर्टेंट है? वी फीलिंग, रोल फीलिंग, डिपेंडेंसी फीलिंग, ऑल ऑफ द अबव. वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज डी. सारे ही जरूरी हैं कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 13. It is a structure of social order and cooperation governing the behavior of a set of individuals within a human community. Institution, interaction, groups या फिर society. Social order and cooperation. The correct answer is institution. तो ये याद रखिएगा, institution क्या होता है? एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो सोशल ऑर्डर और कोऑपरेशन लाता है हमारी ह्यूमन कम्युनिटी में. क्वेश्चन नंबर 14. According to whom an association is a group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view to securing specific end or specific ends. Ginsberg, McIver, P.V. Young, Durkheim. Who said this? Related to association. The correct answer is Ginsberg. देखो जिन्सबर्ग की जो डेफिनेशंस हैं वो उन्होंने सारे टॉपिक्स जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हैं सब में उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है. बट दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी. ठीक है. सीयूईटी में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल है पूछे, तो आप इस पे ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा कि मुझे डेफिनेशंस याद नहीं हो रही हैं. प्लीज मेक श्योर दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रॉन्ग. आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएशन होता क्या है. ठीक है.
क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे सीयूईटी में। और अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट की कर रहे हैं, देन डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। Now, question number 15. Who define culture is that complex entirety which includes knowledge? ये बहुत फेमस डेफिनेशन है कि जिन्होंने कल्चर को कहा था उसमें होता है नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम, ये सारी चीजें, ठीक है। हैबिट्स, कैपेबिलिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कल्चर की डेफिनेशन है। ईबी टाइलर, डेविड बिडनी, रॉबर्ट रेडफील्ड, मेलिनोस्की। The correct answer is E.B. Tyler. Question number 16. Who in his book A Folk Ways, अगर बुक आपको पता है किसकी है तो ये क्वेश्चन तो तुरंत यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने फोक वेज में बुक में इन्होंने फोक वेज की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें इन्होंने कहा था दे आर यूजुअल एस्टैब्लिश्ड रूटीन एंड रेगुलर वे इन विच अ ग्रुप परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सुमनर, मोरे, गूडे या फिर पीटर ब्लाई। पीटर ब्लाउ होगा ये, आई थिंक। वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। फोकवेज इज रिटन बाय सुमनर। क्वेश्चन नंबर 17. इट मीन्स अडॉप्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर फ्रॉम अदर सोसाइटीज। दूसरी सोसाइटीज से हम कल्चर की कुछ चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मीन्स ऑफ इमर्जेंस एंड सोर्स ऑफ सोसाइटी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो किस सोर्स से हमारी सोसाइटी में आया। ठीक है, कस्टम, डिफ्यूजन, एथनोसेंट्रिज्म या फिर ए कल्चरेशन। अगर आपने मेरी कल्चर वाली क्लास देखी होगी तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं क्लियर होगी। ए कल्चरेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एथनोसेंट्रिज्म भी नहीं होगा। The correct answer will be diffusion. Question number 18. Ogburn played a key role in promoting the theory that number of invention within a society is directly proportional to the magnitude of the existent culture. He also observed that the number of material invention was growing with the passage of time. Acculturation, assimilation, cultural lag या फिर diffusion. The correct answer will be C. Cultural lag. Question number 19 में ethnocentrism is made up of ethno and centric. Ethno means people, country, culture. तो फिर centric का मतलब क्या है? Center, main, center या फिर important. Very important question for CUET learners. The correct answer here is center. ओके, ये वाला सेंटर नहीं होगा, ये दोनों ही सेंटर जो है इनकी मीनिंग अलग अलग है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत कम एमसीक्यू हम लोग एग्जाम से पहले सॉल्व कर पाएंगे। सो व्हाटएवर डाउट यू हैव, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20. Who says that the notion of a separate and independent ego is an illusion? कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट ईगो का कॉन्सेप्ट है वो एक इल्यूजन है। जीएच मीड, सीएच कूली, सिगमंड फ्रॉइड या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज सीएच कूली। सीएच कूली की एक फेमस बुक है जिसका नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इन्होंने ये बात बोली है। तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21. In which stage, according to G.H. Mead, the role behavior becomes consistent and purposeful, and the child has the ability to sense the role of other players? तो G.H. Mead ने जो 3 स्टेजेस हमें दी है, उसमें उन्होंने किसमें ये बोला है कि जो रोल बिहेवियर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम दूसरे लोगों का जो रोल है उनको समझने लगते हैं इस स्टेज में। प्रिपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज गेम स्टेज। क्वेश्चन नंबर 22. It takes place mostly when a social role radically changes.
An individual not only changes roles within a group but also changes groups. ठीक है, ये तब होता है when a social role radically changes. आपका जो रोल है वो चेंज हो जाता है रेडिकली. ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन या फिर रीसोशलाइजेशन. रोल जो है वो चेंज हो जाता है पूरी तरह से. द करेक्ट आंसर इज डी, रीसोशलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द ओडिपल स्टेज एंड लेटेंसी. तो जो 4 स्टेजेस हमें दी हैं, किसने दी हैं? फ्रूड ने दी है, सिगमंड फ्रॉइड. ठीक है, इन हिज थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन इन्होंने हमें 4 स्टेजेस दी है. तो कौन सी स्टेज में इन्होंने इस बारे में बात की है या इसको इन्होंने इस नाम से बुलाया है? द करेक्ट आंसर इज थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज को उन्होंने क्या कहा है? ओरल. सेकेंड स्टेज को एनल. थर्ड स्टेज को उन्होंने कहा है ये. एंड फोर्थ स्टेज को उन्होंने कहा है एडोलसेंस. तो ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 24. Who defines social stratification is the division of society into permanent groups. तो social stratification को division of society into permanent groups किसने कहा था? किसके बेसिस पे? सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेशन के बेसिस पे. जिस्पर्ट, गुडे, ऑकबर्न, क्रिस बेकर. द करेक्ट आंसर इज जिस्पर्ट. क्वेश्चन नंबर 25. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू whom 3 P's form the base of social stratification. किसने कहा था कि ये जो 3 P's हैं ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का बेस बनाते हैं? प्रॉपर्टी यानी कि वेल्थ, पावर यानी इन्फ्लुएंस और प्रेस्टीज यानी स्टेटस. मैक्स वेबर, दुर्खाइम, कार्ल मार्क्स, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ए, मैक्स वेबर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और मैक्स वेबर क्योंकि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हम पढ़ते हैं तो उनकी बुक्स वगैरह भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा. सो 25 क्वेश्चंस हो गए हैं और कितने मार्क्स आ रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू टॉइस बॉन्ड ग्रुप ऑफ कास्ट. इसमें से कौन सी ऐसी कास्ट है जो कि टॉइस बॉन्ड में नहीं आती है? ठीक है, यानी वो क्या हो जाएगी? लोअर कास्ट हो जाएगी. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा. वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज डी, शूद्रा जो है वो टॉइस बॉन्ड नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 27. हु हैज गिवन ऑक्यूपेशनल थ्योरी ऑफ कास्ट? नेस्फील्ड, एमाइल सेनार्ट, जी.एस. घूरे या फिर एन.के. दत्ता. ऑक्यूपेशनल थ्योरी ऑफ कास्ट हमें किसने दी है? द करेक्ट आंसर इज नेस्फील्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 28. It is a person who performs professional, managerial और administrative work. तो ऐसे काम कौन करता है? व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ब्लैक कॉलर या फिर रेड कॉलर? वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज व्हाइट कॉलर. क्वेश्चन नंबर 29. Who said if we speak of change we have in mind something that comes into being after some time? That is to say, we are dealing with a difference between what can be observed before and after that point in time. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है बट सोशल चेंज से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट कोटेशन हो जाती है. रैंडल, जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस या फिर स्पेंसर. द करेक्ट आंसर इज रैंडल. क्वेश्चन नंबर 30. इन मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, मार्क्स की जो थ्योरी है सोशल चेंज की, 2 एलिमेंट्स इन सोशल लाइफ हैव प्रीडोमिनेंट प्लेस. इनके हिसाब से सोशल लाइफ में 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस वो लोग लेती हैं एक इंसान की सोशल लाइफ में. डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या दूसरा क्या होगा? रिलेशन बिटवीन सोशल क्लासेस, सोशल कास्ट, सोशल इनइक्वालिटी या फिर सोशल कंट्रोल.
द करेक्ट आंसर इज रिलेशन बिटवीन सोशल क्लासेस। याद रखिएगा कि मार्क्स सोशल क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, who argued that the energetic information exchanges among action system provide the potential for change within or between the action systems। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एक्शन सिस्टम्स। पार्सन्स, दुर्खाइम, वेबर या फिर मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज पार्सन्स। सो सिस्टम की बात जो है वो हमारे टैलकट पार्सन करते हैं, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एमाइल दुर्खाइम इन हिज बुक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ। एमाइल दुर्खाइम की जो किताब है डिवीजन ऑफ लेबर, इसका आपको एक तो ईयर याद रखना है। ये बुक, सो इस बुक में एमाइल दुर्खाइम ने किस कॉन्सेप्ट की बात की है? सुसाइड, रिलीजन, सोशल सॉलिडारिटी या फिर मॉरल एजुकेशन। द करेक्ट आंसर इज सी, सोशल सॉलिडारिटी। क्वेश्चन नंबर 33, who divided the elites into governing and non-governing? पार्सन्स, दुर्खाइम, परेटो या फिर वेबर। The correct answer is Pareto, a very very easy question. Question number 34, all the theories of social change generally assume that the path of social change is not random or arbitrary, यानी social change अचानक से नहीं होता है, ठीक है। To a certain degree, या तो वो रेगुलर होता है या पैटर्न होता है, इरेगुलर होता है, अनपैटर्न होता है, स्टैटिक होता है या डायनेमिक होता है। The correct answer is A. सोशल चेंज रेगुलर होता है और एक तरह का पैटर्न फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 35, Who among the following is a type of youth who take up educational activities? कौन से ऐसे लोग होते हैं, कौन सा ऐसा टाइप होता है यूथ का जो कि एजुकेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है? सोशली आइसोलेटेड, माइग्रेंट्स, मार्जिनल्स, ऑल ऑफ द अबव। The correct answer is D. Oh, sorry, it's D, all of the above। ये सारे ही लोग जो हैं वो एजुकेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, which type of drinking involves those who drink once or twice a year? ऐसे लोग जो कभी कभी ड्रिंक करते हैं साल में एक दो बार, उनको हम क्या कहेंगे? रेयरर यूजर, infrequent user, light drinker, moderate drinker। The correct answer is rarer user, ठीक है। बाकी सारे जो भी टर्म्स हैं अगर आपको नहीं पता है मुझे बताइएगा, मैं इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जितनी ज्यादा चीजें आप कवर कर पाए उतना बेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएगा, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट इफ क्वेश्चन केम एंड यू माइट हैव स्टडीड बट यू स्किप्ड इट, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। सो इट्स बेटर कि जितना आप देख के जाएं पहले से उतना अच्छा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मैं फिर कहूंगी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यही एक तरीका है टू हैव गुड मार्क्स इन CUET एग्जाम, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए अपनी पढ़ाई में, और जो भी आपको चीजें नहीं क्लियर है वो मुझसे पूछिए टेलीग्राम में, बट उनको क्लियर रखिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे बट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आएंगे, तो आपके सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और डेफिनेशंस वगैरह पे ज्यादा फोकस मत करिए, ठीक है। इन केस कोई आएगी भी तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 37, these drugs speed up body's nervous system and create a feeling of energy, ठीक है। they are also called uppers because of their ability to make you feel awake। तो ये किस तरह के ड्रग्स होते हैं? स्टिमुलेंट्स, इनहेलेंट्स, क्या है ये, कैनाबिनॉइड्स या फिर डिप्रेसेंट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज स्टिमुलेंट्स। तो अगर ड्रग एडिक्शन आपने नहीं पढ़ा है अभी तक और नहीं है नोट्स, नहीं पता कहाँ से पढ़ना है, तो मुझे बताइएगा, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी आज ही।
तो मुझे कमेंट में प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, दोज पीपल who are known to be those people who are known to be voluntarily employed who are not working by choice, यानी उन्होंने अपनी मर्जी से ये डिसाइड किया है कि उनको काम नहीं करना है, वो किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। ये मैंने पढ़ाया है अनएम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर है उसमें, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी इस पे 5 मिनट्स की एक वीडियो बनी हुई है, तो अगर नहीं देखे हैं जाके इनके टाइप्स तो प्लीज देखो। टॉपिक है सिलेबस में मेंशन, तो इम्पोर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम की सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। वेरी इजी, मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया कीवर्ड, द करेक्ट आंसर इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 39, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब आई थी? 1999, 1998, 1997 या 1996? CUET का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट ऐड इन दी ब्लॉक। नहीं आता है इट्स ओके, अभी सीख लो। द करेक्ट आंसर इज ए, 1999। क्वेश्चन नंबर 40 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGSY स्कीम? SGSY स्कीम का फुल फॉर्म बताना है। स्वर्ण जीवन ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देन स्वर्ण ग्राम, देन स्वर्णजन, हाँ स्वर्णजन। तो इसमें से कौन सा सही है? द करेक्ट आंसर इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। So 40 questions are already done. So let me know कितना स्कोर कर रहे हैं आप लोग। 41, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा अब तक 200 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच चुकी है। ये 2 Feb को स्टार्ट हुई थी और इसका ईयर आपको बताना है 2003, 2004, 2005 या 2006। देखो ऐसी जो फेमस वाली स्कीम है ना, जो आपको NCERT में या किसी भी ऐसी सोशल साइंस की बुक में मिल जाएंगी, इवन BA के जो नोट्स हैं उसमें भी आपको मिल जाएगी। अगर आप इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे, अगर आप नितिन सांगवान में जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जो भी बेसिक स्कीम्स मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको उनके ईयर तो याद करने ही होंगे, उसको पढ़ने का और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सो इसका सही ऑप्शन होगा 2006, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, किसने कहा था कि क्राइम इज क्लोजली कनेक्टेड विद कंडीशंस ऑफ ऑल सोशल लाइफ? किसने कहा था कि क्राइम जो है वो सारी ही अपनी सोशल लाइफ की कंडीशंस से कनेक्टेड होता है? दुर्खाइम, वेबर, कोंट, मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज एमाइल दुर्खाइम। क्वेश्चन नंबर 43, according to him the criminal or deviant is one to whom the label has been successfully applied। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है थ्योरी। deviant behavior is a behavior that people so label, यानी deviant behavior वही होता है जिसको हम लेबल कर देते हैं उस बिहेवियर को। किस? हार्वर्ड बेकर, वॉल्टर बी मिलर, कोहेन या फिर सदरलैंड? द करेक्ट आंसर इज हार्वर्ड बेकर। अगर ये वीडियो नहीं देखा है लेबलिंग थ्योरी पे, प्लीज गो एंड वॉच, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर दिस एक्ट जुवेनाइल मीन्स अ बॉय हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 16 ईयर्स और अ गर्ल हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। किसमें इसकी बात की गई है? बेसिकली आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का ईयर याद रखना है और आपको ईयर ही बताना है, 1986, 87, 88 या 89। कंफ्यूज हो रहे हैं तो करेक्ट आंसर है ए। नहीं पता था तो इस ईयर को याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन माइट कम। क्वेश्चन नंबर 45, डैश denotes the abuse or misuse of public offices for personal gains। पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है, तो कीवर्ड्स पे ध्यान देना। डोमेस्टिक वायलेंस, करप्शन, ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, क्या टर्म यहां पर फिट होगा? द करेक्ट आंसर इज करप्शन। क्वेश्चन नंबर 46,
राम आहूजा की जो बुक है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, what refers to willfully striking wife by her husband with or without injury, wife battering and abuse, feticide and infanticide, rape, dowry. These are very general question. नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप एलिमिनेट करके इसको कर सकते हैं. The correct answer is wife battering and abuse. Question number 47. Who is the author of I don't know if this word is right or not. I have to see. Unemployment in India and Psychological Health 2016. I will tell in the telegram, or I will pin the right book name if it is wrong in the comment. So आपको वो check करना है, ठीक है. अगर यही book का नाम है तो फिर मैं comment में इसे pin कर दूंगी, but अगर नहीं है तो मैं सही जो book का नाम है वो comment में लिख दूंगी. Okay. लाल बहादुर सिंह, के.एन. गुप्ता, अलीम, रॉबर्ट पर्किंसन. So the correct answer is लाल बहादुर सिंह. Okay, so ये book है, इसे हम डाउट में रख रहे हैं, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने शायद गलत टाइप कर दिया है या कुछ तो मिस्टेक मुझसे हो गया है, मैं इसे कमेंट में सही करके बताऊंगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 48. It is a system in which each caste group within a village is expected to give certain standardized services to the families of other caste. ओके, तो किस तरह के सिस्टम की बात यहाँ पर हो रही है? जमींदारी, जजमानी, संक्रांति या फिर रेउतवारी? एक तो इसमें है ही नहीं सिस्टम हमारे रूरल सोसाइटी में जो हम पढ़ते हैं. Expected to give certain standardized service to the families of other caste. The correct answer will be जजमानी सिस्टम. याद रखना, जजमानी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे आप नहीं स्किप करिएगा. क्वेश्चन नंबर 49. Who is the author of Indian Society 1990? इंडियन सोसाइटी जो बुक है वो किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. डायरेक्ट आपके सिलेबस में वर्ड मेंशन है, दैट मीन्स बुक इंपॉर्टेंट है. एस.सी. दुबे, जी.एस. घूरे, योगेश अटल, ए नायडू या फिर के मूर्ति? द करेक्ट आंसर इज एस.सी. दुबे. मैंने ऑलरेडी इसको शेयर भी करा था टेलीग्राम पे. क्वेश्चन नंबर 50. चेंजिंग इंडियन सोसाइटी 2006, ये किसकी बुक है? एस.सी. दुबे, देन एन हसनैन, नायडू, योगेश अटल? द करेक्ट आंसर इज योगेश अटल. सो 50 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी डन. कितने स्कोर आपका हो रहा है, कैसा हो रहा है, मुझे या तो कमेंट में बताइए या फिर खुद अपने आप को जज करिए. क्वेश्चन नंबर 51. विच अमंग दीज ग्रुप्स वर मेट्रीलिनियल? इसमें से कौन से ग्रुप्स हैं जो कि मेट्रीलिनियल है? मेट्रीलिनियल मतलब जो लीनियज होता है वो हम मदर के साइड से देखते हैं, ठीक है. 51 का आंसर क्या होगा? कुकी, नायर, मीना, कादर, नायर, खासी, मीना, अपतानी, नायर, बंत, खासी, अपतानी या फिर नायर, खासी, बंत और गारो. वेरी कंफ्यूजिंग, बट याद रखिएगा यहाँ पे. द करेक्ट आंसर इज डी. तो नायर, खासी, बंत और गारो ये सारे ही हैं मेट्रीलिनियल, तो ये चीज आपको याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 52. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी? इसमें से कौन सा एलिमेंट रूरल कम्युनिटी का नहीं है? याद रखना, क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें आपको बहुत फोकस करनी है, अक्सर गलत कर देते हैं इस चक्कर में. वी फीलिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, टेरिटरी, सेल्फ सफिशिएंसी. तो क्या एलिमेंट नहीं होना चाहिए रूरल कम्युनिटी में? द करेक्ट आंसर इज कल्चरल डाइवर्सिटी. बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती है. ये फीचर हमें कहाँ देखने को मिलता है? अर्बन में, जहाँ अलग अलग तरह के रिलीजन, अलग अलग तरह के हमें कल्चर मिलते हैं, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दिल्ली. दिल्ली अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कई तरह के लोग मिलेंगे. साउथ के लोग भी हैं वहाँ पे, नॉर्थ के भी हैं, बहुत अलग अलग तरह के हैं. तो बहुत सारा वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 53. Which one of the following Max Muller believed to be the earliest form of religion? Max Muller के हिसाब से कौन सा इसमें से form of religion earliest है, सबसे पहले आया था? नेचरिज्म, मोइनिज्म, एनिमिज्म या फेटिशिज्म?
The correct answer is naturism. Question number 54. The change of statuses occurring with sufficient frequency, यानी बार बार जो चेंज होते हैं स्टेटस as to be socially patterned can be designated as, इसको हम क्या कहेंगे? स्टेटसेस का बार बार सीक्वेंस में चेंज होना. ओके, सो नाउ आई हैव यूज्ड द कीवर्ड स्टेटस सेट, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, स्टेटस सॉरी सोशल स्टेटस या फिर स्टेटस सीक्वेंस. द करेक्ट आंसर इज डी, स्टेटस सीक्वेंस. तो ये चीज आपको याद रखनी है. स्टेटस और रोल, वैल्यू, नॉर्म, ये सारी चीजों से क्वेश्चन आते हैं. भले ही इजी लगे बट इनको लाइटली नहीं लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 55. When the performer of a role adopts a subjective detachment from the role, यानी रोल से थोड़े दिन के लिए डिटैच्ड हो गए, इसे हम क्या कहेंगे? रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल टेकिंग, डिस्टेंस, इनकम्पैटिबिलिटी. डिटैच हो गए थोड़े टाइम के लिए अपने रोल से. द करेक्ट आंसर इज रोल डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 56. By what term Merton designated the range of role relationship which persons have by virtue of occupying a particular social status? मर्टन ने इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट हमें दिया है? मल्टीपल रोल, रोल सेट, रोल नेटवर्क, स्टेटस रोल. द करेक्ट आंसर इज रोल सेट. तो याद रखिएगा रोल सेट का कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय मर्टन. क्वेश्चन नंबर 57. मैकेनिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो हैं किनशिप स्ट्रक्चर में, वो हमें किसने दी है? लेवी-स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, रैटक्लिफ ब्राउन या फिर एसएफ नाडिल? द करेक्ट आंसर इज लेवी-स्ट्रॉस. तो ये चीज आप याद रखिएगा किनशिप में. क्वेश्चन नंबर 58. Which aspect of inequality has been ignored by Davis and Murray? कौन सी चीज को inequality में इन्होंने इग्नोर करा है? Handsomeness, beauty, power and authority, status, important positions. The correct answer is power and authority. Question number 59. अब यूनिवर्सलाइजेशन जो एक प्रोसेस है आपके सिलेबस में मेंशन है, ये क्या होता है? The elements of great tradition move downwards to become part of little tradition. मतलब जो मेन ट्रेडिशन होता है उसकी चीजें जाके मिल जाएं लिटिल ट्रेडिशन में और उनका पार्ट हो जाएं, या फिर द लिटिल ट्रेडिशन इज एक्सपोज टू सांस्कृतिक आइडियाज एंड वैल्यूज, या फिर यूनिवर्सल नॉर्म्स आर अडॉप्टेड, या एलिमेंट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन मूव अपवर्ड टू बिकम आइडेंटिफाइड विद ग्रेट ट्रेडिशन. तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सलाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज डी. याद रखना यूनिवर्सलाइजेशन में जो लिटिल ट्रेडिशन होता है वो जाके बन जाता है ग्रेट ट्रेडिशन. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 60. रूरल इनइक्वालिटीज में क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी और डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी, इन दो चीजों की बात कौन करता है? आंद्रे बेते, योगेंद्र सिंह, एफ.जी. बेले या फिर एम.एन. श्रीनिवास? The correct answer is Andre Bete. Very very important question. Keyword based है, बहुत आसान है. Now some questions are left. 60 questions are already done. Question number 61. Which one of the following feminists made this statement? One is not born but rather becomes a woman. किसने कहा था ये? Simone de Beauvoir, Margaret Mead, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या फिर बेटी फ्रेडमैन? दिस इज फ्रेडमैन. आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है टाइपिंग में. द करेक्ट आंसर इज सिमोन डे ब्यूवर. ओके. क्वेश्चन नंबर 62. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि आगे जाते जाते दे बिकम कॉम्प्लेक्स. तो बहुत इजी है ये. अगर आपने ये सारी ही चीजें पढ़ रखी होंगी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, सोसाइटी, तो आप ये चीज कर लेंगे. द करेक्ट आंसर इज बी. याद रखना सबसे कम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होता है, देन उससे ज्यादा होता है एसोसिएशन, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है स्टेट. आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे कम कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. Question number 63. Jajmani system can best be explained by
mutual trust and cooperation of the people, conflicting interest of the people, oppression and suppressive measures adopted by the judgments, conflicting interest and distress of the people. The correct answer is A, mutual trust and cooperation of the people. Question number 64. Moving average is calculated by using moving average को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या यूज करते हैं, मीडियन, मीन, मोड या मीन एंड मीडियन. एवरेज निकालने की बात हो रही है तो अगर आपने मेरा वो स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा जो मैंने मीन मीडियन मोड पढ़ाया है वो वाला भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे. द करेक्ट आंसर इज मीन. ठीक है, इफ नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जाके देखो. क्वेश्चन नंबर 65. Which method is more suitable collecting data from non-literate communities? कौन सा मेथड सुटेबल होगा अगर नॉन लिटरेट कम्युनिटीज से हमें डेटा कलेक्ट करना है? क्वेश्चन एयर, ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन एयर तो नहीं हो सकता है, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे क्वेश्चन एयर हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑब्जर्वेशन. क्वेश्चन नंबर 66. Who is said to be the founding father of survey research? Very important. सर्वे रिसर्च के फादर कौन है? चार्ल्स बूथ, देन P.F. लैजर्सफेल्ड, R.K. मर्टन, W.J. गुरे. द करेक्ट आंसर इज B, लैजरफेल्ड. क्वेश्चन नंबर 67. द क्वेश्चन why is it about a social phenomena is the key to which type of research design? किस रिसर्च डिजाइन में why is it की बात होती है? कौन से क्वेश्चन why is it क्वेश्चन का कौन आंसर देता है इसमें से? एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल. अच्छा, ऑप्शंस ये हैं A और B, B और C और D या फिर D और A. तो आपको नंबर्स में मुझे बताना है. द करेक्ट आंसर इज 3, C एंड D. यानी ये दोनों जो हैं एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल गिव अस why. ओके. Question number 68. When a research is undertaken to test a social theory, the researcher is involved in inductive research, deductive research, exploratory research या फिर theoretical research. ध्यान से देखो, research is undertaken to test a social theory. Theory already बन चुकी है, now we will test it. The correct answer is deductive. तो ये याद रखना, इसका अपोजिट अगर पूछेगा तो आंसर will be inductive. क्वेश्चन नंबर 69. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट हाँ अनकॉमन है, और ये मुझे सारे ही क्वेश्चंस जो मैंने आज दिए हैं दे आर ऑल फ्रॉम ग्रेजुएशन लेवल. ओके, दे आर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम ग्रेजुएशन नोट्स ऑफ सम यूनिवर्सिटी. सो प्लीज आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने ये कहीं से भी बना दिए हैं. दे आर स्ट्रिक्टली फ्रॉम योर सोशियोलॉजी बुक्स ऑफ ग्रेजुएशन. ठीक है. सो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हमें किसने दिया है? आर्मंड पॉल, हर्बर्ट हाइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, पेरेटो. ये दो तो नहीं ही होंगे क्योंकि हमने ये पढ़े हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं इग्नू सीरीज में. सो 69 का आंसर हो जाएगा बी, हर्बर्ट हाइमन. क्वेश्चन नंबर 70. Certain guidelines which direct conduct in particular situations. Guidelines which direct conduct in some situations differently with teachers' friends are also known as laws, norms, folkways, customs. The correct answer is norms. याद रखना, norms are only guidelines. Guideline is the basic and important keyword for norms. Okay. So 70 questions we have done. Now 5 more questions are left. I hope कि आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे. Question number 71. Live-in relationship is a recent phenomena visible and accepted in which society? ये जो live-in relationship है ये कौन सी सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है? ट्राइबल, रूरल, अर्बन, कॉस्मोपॉलिटन. अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन अर्बन एंड कॉस्मोपॉलिटन. ट्राइबल में तो नहीं होता है और रूरल में भी नहीं होता है. लिव इन रिलेशनशिप हमें दिखता है कॉस्मोपॉलिटन में. याद रखना, इसका आंसर कॉस्मोपॉलिटन होगा. ठीक है. एक किताब है जिसका नाम है डॉरी. ठीक है, ये किसकी बुक है? मधु कीश्वर, सुशीला कौशिक, लीला दुबे, शर्मिला रेगे. ये नेट का क्वेश्चन है, पहले काफी पूछा गया था. सो आई थॉट ऑफ एडिंग हियर. द करेक्ट आंसर इज मधु कीश्वर. याद रखना.
क्वेश्चन नंबर 73, जो मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट है वो किसका है? आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, खाली कॉन्सेप्ट ही अगर याद है। इसका खैर मतलब क्या था देख लो, यहाँ पे लिखा है इम्पैक्ट ऑफ हायर फीमेल मोर्टेलिटी फॉर वेरियस रीजंस इन आवर कंट्री। इतना ज्यादा मोर्टेलिटी हो रहा था फीमेल्स का, इतना ज्यादा जो मैंने पढ़ाया है ना इन्फेंटिसाइड फेंटिसाइड, उसी पे इन्होंने बोला है अमर्त्य सेन ने। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि आपके में टॉपिक है फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड वाला। सो मैंने बोल ही दिया कि करेक्ट आंसर इज अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 74, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अप्रोच कब आई थी? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ईयर पे फोकस करना है। 1995, 2000, 1990, 2005। The correct answer is A, 1995. Now the last question of the day, which of the following is not a technique of data collection in qualitative method? Qualitative method में इसमें से कौन सा टेक्निक हम नहीं यूज करते हैं? Observation, schedule, oral history, interview. The correct answer is oral history. So let me know in the comment section how much you are scoring. And I'm sorry मैं explain नहीं कर पाऊंगी because there's less time and मुझे बहुत सारे questions बनाने हैं, बहुत सारा upload करना है आप लोगों के लिए. So अगर कोई भी doubt है let me know in the comment section, okay? And tell me what is your score. Don't forget to subscribe to my channel. If you are a sociology student, you can go to playlist and see जो भी videos आपको help कर रहे हैं. Don't forget to join my Telegram channel. This is my personal Telegram channel. कोई भी doubt हो, you can always talk to me. So thank you very much guys. Keep learning.